والسماء ذات البروج. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن لیو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آغاز 29 جولائی 2024 سے ہونے جا رہا ہے. آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں اس سچویشن میں تمام قسم کی جو رسکی ڈیسیجنز ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. یہ ٹائم نہیں ہے رسک لینے کا، اینڈ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنی ہیلتھ کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نظر نہیں آ رہی، اسپیشلی وہ لیوز جن کو آئی سائٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اپنی آئی سائٹ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے گا، کہیں آپ کی آئی سائٹ کمزور تو نہیں ہو رہی، آپ کو چکر تو نہیں آ رہے، سر درد تو نہیں بڑھ رہا آپ کا، تو یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت رہے گی. اور آنکھوں کے حوالے سے مسائل کافی سارے لیوز کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ویڈیو کے آغاز میں نے اس ویک کا صدقہ بتایا ہے، اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اینڈ آنکھوں کے پرابلم سے بچنے کے لیے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو 1.25 kg گندم ثابت یا 1.25 kg چنے کی دال یہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا صدقہ کریں. اس ویک میں آپ کوشش کریں کہ لائٹ بلو کلر زیادہ پہنیں تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اس سے بھی بینیفٹ ہوگا. رسک آپ نے نہیں لینا، کوئی بھی رسکی ایکشن آپ کو بہت بڑی اماؤنٹ آپ کے ہاتھوں سے گوا سکتا ہے. اس لیے آپ نے ڈینجرس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑنا، انلیگل معاملات میں نہیں پڑنا، رسک نہیں لینا کسی بھی قسم کا، اور کسی بھی ایسی چیز میں انویسٹ نہیں کرنا جس میں بہت تیزی سے پیسہ بننے کی آفر آپ کو مل رہی ہو. جن لوگوں کے بچے ہیں اور وہ لیو ہیں، تو لیوز اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے آپ کو. اس سے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ملے گی. اینڈ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے کوشش کریں پیرنٹس کے ساتھ یا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا. اپنی انٹیوں کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ان کے پاس یا کسی بھی صورت میں، تو یہ کر سکتے ہیں آپ. اس سے پازیٹیو انرجیز آپ کو ملیں گی. اپنے پیرنٹس کی، بڑوں کی، رشتہ داروں کی دعائیں لیں. اگر آپ کے پیرنٹس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ کے بچے بھی نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پیرنٹس کی قبروں کو وزٹ کریں، وہاں پہ جا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور راستے کھلتے جائیں گے. لو اور اسکوپ کی اگر میں بات کروں تو لو اور اسکوپ، لو لائف آپ کی بہت اچھی جاتی نظر آ رہی ہے. سنگل پرسنس کے لیے ریلیشن شپ میں جانے کے میکسیمم چانسز موجود ہیں. اگر آپ سنگل لیو ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اپرچونٹیز بالکل آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں ان کے ریلیشن شپ میں بہت بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کے اپنے لائف پارٹنر، لو ون، اسپاؤس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ریلیشن شپ آپ کا جو ہے پہلے سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا پارٹنر اور آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے، کسی وجہ سے یہ موومنٹس بھی آپ کی لو لائف میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ہیپی ریلیشن مجھے نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ریٹ کروں گا میں آپ کی لو لائف کو 9.9 آؤٹ آف 10، کیونکہ پلانٹری پوزیشن پوری فیور دکھا رہی ہے. فنانس ہوراسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کے فنانس کے حوالے سے کوئی ٹینشن آپ کے آڑے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ پیسے آپ کے پاس پراپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انویسٹمنٹس آپ کو پراپر پروفٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی اچانک سے آپ کو بہت اچھی قسم کی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے آپ کے لیے، اس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت آپ کو رہے گی. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں 16، 19 اینڈ 20 اچھے آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہنے والے ہیں اس ویک میں ٹورس اور ایریز، جبکہ لیو اور پائسس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. یعنی آپ کا اپنا زوڈیک سائن اور اپنی ذات کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور بالکل پرجوش نہیں ہو جانا. پیسوں کی آمد و رفت دیکھ کے تھوڑا سا معاملات کو سمجھ کے آگے چلنا ہے. اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ
थोड़ी सी तवज्जो चाह रही है, वर्क का लोड कम रहेगा रूटीन से, लक आपको एवरेज फेवर दे रही है, 50-50 किस्मत का साथ रहेगा इस वीक में, मूड आपका थोड़ा सा डाउन रह सकता है, इस पे काम करने की जरूरत आपको लियो रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने बारे में अपॉइंटमेंट लेके प्रेडिक्शंस, रेमेडीज या नेम की स्पेलिंग चेंज करवाना चाहते हैं, कंपैटिबल। सबसे पहले लियो दोस्तों को सालगिरह मुबारक, आपका 16 ईयर शुरू हो गया और 28 जुलाई से लेकर तो 4 अगस्त तक जितने भी हमारे लियोज हैं उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। इनकी मैं एक वीडियो करूंगी, इसी हफ्ते में वीडियो करूंगी, क्योंकि जो जुलाई के लियोज होते हैं वो अगस्त के लियोज से बहुत फ़र्क होते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंस। सो और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लियोज जो है वो किसी न किसी एक मेजर प्रॉब्लम है। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि लियो लोग जो है वो एक इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं। मे बी के प्रॉब्लम्स उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी इमोशनल है, सो इस पर हम बात करेंगे अनकरीब। और फिलहाल आप सबको सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि अल्लाह करे कि आपकी जो आपका जो ये 16 ईयर शुरू होता है ये हर तरह की खैर आफियत इसमें रहे, और आपकी जो हाजात हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो विशेज़ हैं, वो अल्लाह के करम से पूरी हों। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए फैलाव का हफ्ता है, एबंडेंस का हफ्ता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अता भी हो सकती हैं आपके रब से। आपने अलबत्ता अपने जो जितने भी मेल आपकी ज़िंदगी में हैं, चाहे वो फादर है, सन है, हस्बैंड है, भाई है, बॉस है, जो भी मेल्स हैं और अथॉरिटी वाले लोग हैं जिनकी आप पर अथॉरिटी, लेट्स पुट इट लाइक दैट, उन लोगों के बारे में इम्पल्सिव रवैये का मुजाहरा नहीं करना, केयरलेस रवैये का मुजाहरा नहीं करना, गुस्से का मुजाहरा नहीं करना, और अगर कोई जॉब है तो उसे छोड़ने का आपने फैसला नहीं करना, या कोई बेसिक डिसीजन होता है कि अचानक कोई जॉब कर ली, अचानक कोई जॉब छोड़ दी, इस रवैये से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अपनी कमेंट करने में, अपनी बातचीत करने में अपने कोशिश करनी है कि आप खुशामद तो आप कर नहीं सकते, ये लियो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या है जो लियो करने पर आए तो वो कर ना सके। सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने इस हफ्ते कोशिश करनी है कि आप लोगों का रवैया खुश करने वाला हो, लोगों को आप खुश करने की कोशिश करें, और मेजर फैसले ना करें, और फौरन ना करें, या इम्पल्सिव होकर ना करें। उसके बाद आप की जो जैसे आप क्योंकि आपका रवैया ऐसा है कि आप थोड़े से हाइपर हैं इस हफ्ते, जैसे आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, उसकी बात काट के अपनी बात शुरू कर दी, आउट ऑफ टर्न बोलना शुरू कर दिया, और जैसे आपसे अपनी बात कहने के लिए आपसे सब्र नहीं हो रहा, तो ये इस रवैये को भी थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। तो और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों की फेवर में रहें, लोगों को लोग आपसे डिसअपॉइंट ना हो या आपके अगेंस्ट ना जाएं, लोगों की फेवर हासिल करने की कोशिश करनी है। पूरे जो हफ्ता है उसकी ये पंच लाइन है, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है आप दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाएं। सो कंट्रोल योर कमेंट्स, और ख़ास तौर पर आप जो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया है, उस पर आप किसी बहस में ना पड़ें, किसी जैसे पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करने की बजाय, अपने कमेंट्स देने की बजाय, अपने बोल्ड ख्यालात का इजहार करने की बजाय कोई और क्यूट सी बात कर लें, कोई और किसी फिल्म की, किसी आइडिया की, किसी आर्ट की, इस तरह की बात करें। यानी कि आपका इस अपने सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन हो सकता है, सो उस पर आप कोशिश कीजिएगा। और मकसद कहने का ये है कि वो काम ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ते कीजिए, नया कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है, और पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल दूर रहिए, पॉलिटिकल कमेंटिंग से और पॉलिटिकल डिबेट से दूर रहिए। अगर आपका पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके दोस्त आउट ऑफ द वे जाएंगे। दोस्तों के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है दोस्त आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करें। और दूसरा ये है कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वो लोग आपको उनका रवैया स्ट्रेंज हो सकता है, बुरा नहीं मैं कह रही,
अजीब व गरीब हो सकता है। उसके बाद आपने फाइनेंसेस का पूरा एनालाइज कीजिए कि आपके फाइनेंसेस जो हैं आपने कहाँ रॉन्ग स्पेंडिंग की और कहाँ आप सेव कर सकते थे। और उसके बाद एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए दोस्तों के लिए कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी जो वाइब है, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मुतवज्जो हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लाइम लाइट में, आप स्पॉट लाइट में, हर कोई आपको देख रहा है और हर कोई सेंसिटिव भी है और हर कोई ये समझ सकता है कि आपने जो बात की वो मेरे अगेंस्ट की है, जो बात की वो मेरे खिलाफ की। इस तरह के रवैये का आपको सामना हो सकता है। सो बी केयरफुल देयर ऑल्सो। और उसके बाद फाइनेंसेस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और अपने आप को जो आपने परचेज कर लिया है या जो आपने स्पेंड कर लिया है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत, क्योंकि हो सकता है आपने जो परचेज किया आप उसे उठा के फेंकने की कोशिश करें या रिटर्न करने की कोशिश करें या इस तरह का आपका रवैया हो। सो आपने जो ले लिया है, जो बाय कर लिया है, हर तरह से मैं कह रही हूँ सिंबॉलिकली कि जो मिल गया है, जो आपने ले लिया है, जो आपने डिसीजन ले लिया है, उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश करें और उसमें से अच्छाई निकालने की कोशिश करें और उसे उठाकर बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है लव, जैसे इंतज़ार ख़त्म होता है और आपका के लिए जो भी आपका इंतज़ार था, वो जो आपका था, कारोबार का था, मोहब्बत का था, बहुत इज्जत और एहतराम से आपको मिल जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी बेपना, झूठ, चक्करबाजी, सबक दिखाना, कौन पीपल और कौन मैन आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हैं। सो बी केयरफुल। आपकी लव लाइफ में इस तरह से है कि जैसे डिस्कशंस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं और बातचीत है और चीज़ों का सुलझाना है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंपटीशन, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से या अपने क्लास वालों से, अपने पीयर से पीछे हो। आपका लकी नंबर 41 है। 41, 4 and 1 ये नंबर लकी गुड नंबर है, लेकिन ये आपके अंदर थोड़ा सा हलचल लेकर आता है। सो इसका ये जो भी हमने देखा वहीं पर ये भी 41 पे कहते हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन करें। सेल्फ डिसिप्लिन is what you require this week. So lucky number is 41 और जो मैसेज है न्यूमरोलॉजी का वो है डिसिप्लिन योर सेल्फ। आपका जो लकी नंबर है, लकी स्टोन बन रहा है, वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं सन स्टोन या स्टार स्टोन। ये ब्राउन से कलर का स्टोन है। ये आपके जो आपके आराम से कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन इस हफ्ते अपने साथ एक रूबी रखने की कोशिश कीजिए। एक रूबी रखिए और अगर आपको ज़्यादा अपना जज्बातीपन महसूस हो तो मरजान पहन लीजिए, रूबी और मरजान। लेकिन वैसे ये सन या स्टार स्टोन आपको इस हफ्ते चाहिए। आपका जो लकी है, आपका लकी चार्म जो इस हफ्ते का बन रहा है वो लैंप बन रहा है, चराग जिसमें से रोशनी निकलती है, सिंबल होता है रोशनी का। चराग कह लें, दिया कह लें। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हासिल आए तो अपने रब पे यकीन कीजिए, उस पर तवक्कल कीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी रब से पोशीदा हो और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहर हो। आधी रात की नमाज या आधी रात की इबादत या आधी रात का सजदा जो है वो आपके रब को राज़ी करने की सलाहियत रखता है।